Moses came into a calling मूसा एक ऐसी बुलावट में पहुंचा because he heard a voice from a burning bush. क्योंकि उसने एक जलती हुई झाड़ी से एक आवाज सुनी। Can I hear an amen? Jesus started his ministry यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत because he heard the voice from heaven. क्योंकि उसने स्वर्ग से वाणी सुनी। John the Baptist is called the voice in the wilderness. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहते हैं वो जंगल में एक आवाज है। Eve in the Garden of Eden, अगर अदन के वाटिके में she heard a voice हवा ने आवाज सुनी and ate the fruit. और फिर उसने फल खाया। That means your life is controlled by a voice. यानी आपका जीवन एक आवाज चलाता है, कोई आवाजें चलाती But है the wrong voices. लेकिन वो गलत आवाजें चला रही है। Hallelujah. Voices of death. वो मृत्यु की आवाज, Voices of fear. डर की आवाज Voices of suicide. और आत्महत्या की आवाज। Voice. आवाज Which voice are you in control? कौन सी आवाजें आपको चला रही है? Whether you die or live, अगर आप जिए या मरे it depends on the voice. वो आपके आवाज के ऊपर Come on, निर्भर say with है। me, voice. कहो कि आवाज। Come on, pastor, voice me. ओके पासवा, आप मुझे आवाज चाहिए बोलो। बोलो ना. Even you are sitting here and you feel like drowsing, there is a voice in your mind telling close your eyes. अगर आप यहाँ पे बैठे और आपको बहुत नींद आ रही है तो आपके दिमाग में एक आवाज कह रही कि आपकी आंखें बंद करो, नींद आ रही है। Because you last night you did not sleep because the voice said be awake so that morning you cannot go into the church. Even if you go to the church, you go late and sleep. क्योंकि कल रात को एक आवाज ने आपको कहा आपको सोना नहीं, आज रात को तुझे जागना है और कल अगर तू उठकर जाएगी कलीसिया में तो वहां पे जाके तू सो सकते But हैं। today, लेकिन I'm going to see the change in the house of God. आज मैं प्रभु के भवन में एक चेंज देखूंगा। Somebody and say, I'm going to see a change in my life. किसी से मुड़ के कहे मेरे जीवन में मैं एक बदलाव देखता हूँ। I'm going to see a change in my life. मेरे जीवन में एक बदलाव मैं देखूंगा। I'm going to see a change in my life. मेरे जीवन में एक बदलाव मैं देख रहा हूँ। Right now we are standing today आज हम खड़े हैं because of three voices in our life. हमारे जीवन में ये तीन आवाजों के कारण। Do you want to know more? क्या आप और जानना चाहते हो? This three voices is going to change your entire life today. ये तीन आवाजें आज अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। Our life is standing on three voices. हमारा जीवन ये तीन आवाजों के ऊपर खड़ी है। Write down the first voice. लिखो अभी पहली आवाज। Write down the first voice. पहला आवाज लिखो। The voice of mercy. करुणा की आवाज। Say with me, the voice of mercy. कहो कि करुणा की आवाज। Do you know what mercy is? क्या आप जानते हो कि करुणा का मतलब क्या है? If at all you knew this, अगर आप इस बात को जानते थे you would have not dozed in the church. आप कलीसिया में सोते You would have not नहीं, missed the church. आप कलीसिया को मिस नहीं करते, Or you would have not. नहीं तो आप Let it be. Philippians 2:25-27, please. फिलिपियों का 2:25 से Do you want to know 27। what mercy is? क्या आप जानना चाहते कि करुणा का मतलब क्या है? Yet I considered it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, fellow worker and fellow soldier, but your messenger and the one who ministered to my need. फिलिपी का 2:25 कहता है पर मैंने इफ्रोदितुस को जो मेरा भाई है और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। Hallelujah. Now verse 26. अभी 26। Since he was longing for you all and was distressed because you had heard that he was sick. क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वो व्याकुल रहता था क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। It refers to Epaphroditus, अभी ये इपफ्रोदितुस के विषय में है who is sick. जो बीमार है। He was Paul's companion. और पौलुस का वो सहभागी He था helped in Paul in the ministry. और वो पौलुस की सेवकाई में मदद करता था। Now this Epaphroditus, अभी देखो ये इपफ्रोदितुस, you know, we learned about him Philippians when he went and gave the offering, और right? वहाँ हमने उसके बारे में फिलिपींस की पुस्तक में सीखा जहाँ पे जाकर वो अर्पण देता Now है, दान today देता he है। is sick. अभी वो बीमार है, Hallelujah. He is sick. अभी वो बीमार है। Verse 27 says, और वचन 27 for कहता है indeed he was sick, क्योंकि वो सचमुच में निश्चय वो बीमार हो गया almost था, unto death.
यहाँ तक कि वो मरने पर था। Epaphras is almost on the deathbed. अभी ये इपफ्रितुस जो है वो मरने पर ही था, But God had mercy on him. लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया की। And not only on him, but on me also, Paul says. और पौलुस कहता है केवल उस पर ही नहीं लेकिन मुझ पर भी, Lest I should have sorrow upon कि sorrow. मुझे शोक पर शोक न हो। Hallelujah. This man, Epaphras, is sick and is dying. अभी ये व्यक्ति इपफ्रितुस बीमार हो गया, अभी वो मरने पर है, But God had mercy on him. लेकिन प्रभु ने उस पर दया की He was dying in sickness. और वो अपने बीमारी के कारण मरने पर But the था। mercy spoke. लेकिन दया बोली। Mercy is when God steps in when you run on the problems of the death और bed. दया कब दिखाई देती? जब आप कोई समस्या में पड़े हुए और एक मृत्यु का सामने ऐसे स्थिति पर पहुंच गए हो। Mercy is when God, दया एक ऐसी चीज है, when you run out of your own resources. दया जो ऐसी चीज है जब आप अपने खुद के आपको कोई आगे सोत्र दिखाई नहीं दे रहा There is है no और way आपका out. सोत्र का कोई रास्ता नहीं दिखाई You दे have रहा come है। to an dead end of your life. आपके जीवन के एक अंतिम घड़ी पे आप There पहुंच is गए no हो। resources found. अभी आगे मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता That's है। where the mercies of God steps in. और वहां पे प्रभु की दया या करुणा अंदर When प्रवेश you are करती है। exhausted, जब आप पूरे थक चुके हो, when you are tired, आप पूरी तरह से टायर्ड हो चुके now हो, you're overtired. अभी आप ज्यादा थके हुए When you हो, are running out of plan, जब आपका प्लान खत्म हो चुका when है, you don't know what to do, अभी आपको आगे क्या करना है पता नहीं। you have to take your loved ones to the service, funeral service. अरे मेरे प्यारे लोगों को मुझे ये गाड़ने की सभा में ले जाना पड़ेगा, Because they have problems. क्योंकि उनके जीवन में ऐसी समस्याएं You हैं। took your loved ones to any place, any prayer houses, any prophets. इसीलिए आप अपने प्यारे लोगों को कोई भी प्रार्थना घर में लेकर जाते हो, प्रार्थना किस जगह पर लेकर जाते हो, प्रार्थना करवाने ले जाते हो, नबियों के पास ले जाते From हो। Dinakaran to the last prophet, they're putting their hands and praying, nothing happening. और दिनाकरण से लेके अंतिम नबी तक सब लोग हाथ करके उनके लिए दुआ कर रहे, कुछ भी नहीं हो And you रहा है। fasted and prayed, nothing happened. आपने भी उपवास प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। Epaphras dying. अभी इपफ्रितुस मरने Even पर है, Paul could not help him. लेकिन पौलुस भी उसका मदद नहीं कर पाया। You know who is Paul? जानते हो पौल कौन है? Paul is the one who sent the handkerchief. और पौलुस वही व्यक्ति है जिसने वो रुमाल को भेजा था। Dead came back to life. मुर्दे जिंदा होते Sick थे, were healed. बीमार लोग चंगे होते थे, Demons were casted out. दुष्ट आत्माएं भी निकलती थी, Various of sickness were healed. भिन्न भिन्न बीमारियों से लोग चंगे होते थे उसके Now रुमाल से। his fellow worker, अभी उसके सहभागी सुकर्मी लोग Epaphras, और इपफ्रितुस, here my kerchief in your hand. एक मेरा रुमाल तेरे हाथ में है, Nothing is happening. कुछ नहीं हो रहा है। Why Paul could not do anything to Epaphras? तो पौलुस इपफ्रितुस के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाया? Paul would have prayed. पौलुस प्रार्थना कर सकता था। What about the anointing, Mr. Paul? अरे पौलुस का अभिषेक का क्या हुआ? Where is that anointing upon your life? तेरे जीवन पर अभिषेक कहाँ है अभी? Paul, where is that faith in you? पौलुस तेरे अंदर का विश्वास कहाँ पर Paul, गया? what about the grace that you spoke? Where that grace is? तो पौलुस तूने बड़ी अनुग्रह की बातें सिखाई थी, वो अनुग्रह कहाँ गया अभी? Epaphras, इपफ्रितुस, you are the partaker of my grace, he said. वो कहता है कि तू मेरे दया का भागी सहकर्मी है। What happened to all those statements Paul made to तो पौलुस ने Epaphras? जो भी वाक्य की बताया था या प्रचार में बातें की थी, उसका क्या हो गया? And Paul ran out of solutions. अभी पौलुस के पास आगे कोई उपाय नहीं दिख Many रहा times है। it happens with us. We run out of और solutions. कई बार हमारे साथ में भी ऐसा होता है, हमें कोई ज्यादा आगे उपाय दिखाई नहीं देता है। Lot of times it has come to us. हमारे पास भी बहुत सारे ऐसी चीजें हमें सामना करना There पड़ता is है, no answers. कोई उत्तर नहीं। On a day like this, on the deathbed, अभी ये एक ऐसा दिन जहाँ पे अपने मृत्यु पर मरने पर वो ऐसी स्थिति पे पहुंच गया there है, is a voice called mercy एक आवाज आती है जिसका नाम है दया, that is करुणा, speaking over your death. जो आपके मृत्यु पर घोषणा कर Come रही on, है। somebody, hallelujah. हालेलुया। The sickness cannot win over the mercy. देखो ये बीमारी दया पर जय नहीं पा सकती Can I hear an है। amen? आमेन। In Corona,
कोरोना में many people died, बहुत सारे लोग मर गए, but you are alive. लेकिन आप लोग जीवित हैं। Why? क्यों? Mercy over the death. क्योंकि वो मृत्यु के पर प्रभु की करुणा I आई। was dying in the hospital. मैं मर रहा था हॉस्पिटल में, No fellow of this world came to save my life. कोई भी इस दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे बचाने नहीं आया Where था। were those anti-Christians? They could not come to the hospital when the corona was there. कहाँ गए ये सारे मसीह विरोधक लोग? जब कोरोना था वो हॉस्पिटल में आके I was किसी से मिलने dying. गए। मैं मर रहा था। Doctor said, take and go. This is not corona hospital. डॉक्टर ने कहा था लेके जाओ, ये कोरोना का हॉस्पिटल नहीं है। Mercy came upon her. दया उसके ऊपर आई, Mercy came upon doctor. डॉक्टर के ऊपर कोरोना आई, Mercy came upon my life. और मेरे ऊपर कोरोना आई, And I came back and I'm still alive. और मैं वापस से आया और मैं अभी भी जीवित हूँ। Mercy speaks over death. Come on, मृत्यु somebody. के ऊपर दया जरूर बोलता है।